Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. So let's see. आज हम लोग बच्चों जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, this topic is actually called bubble sort. So let me name this bubble sort. So when we talk about the bubble sort, बच्चों जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे bubble sort की, bubble sort. So this is one of the algorithms that are used to sort the arrays. ये array की sorting के लिए हम लोग use करते हैं, and this is one of the simplest algorithm used to sort arrays in ascending or descending order. So this is बच्चों one of the simplest algorithms that we use to sort arrays in ascending or in descending order. Now, before we move forward, let me show you, demonstrate you बच्चों how this algorithm actually works. ये algorithm किस तरह काम करता है, आप लोग की ये understanding होनी चाहिए, बड़ी crystal clear होनी चाहिए. Let's assume that this was one of our arrays. हमारे पास ये एक array था हमारा. This was one of our arrays. And these were the indexes of the arrays: 1, 2, 3, 4, and 5. The values in this array बच्चों was 5, 1, 2, 4, 8. So how this algorithm actually works, ये अभी आपका array एक ऑर्डर के अंदर नहीं है. आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर क्या होता कि या तो either the array should be in ascending order, that should be 1, 2, 4, 5, 8, or it should be in descending order, that is 8, 5, 4, 2, 1. So your array can be in any of the one order. So let's see. मैंने यहाँ पे बच्चों आप लोग को दिखाया. The first value that we have is 5 and 1. The first value बच्चों is 5 and 1. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये demonstrate कर रहा हूं how this algorithm actually works. बबल सॉर्ट का algorithm किस तरह काम करता है. कोड में फिर आप लोग को थोड़ी देर में लिखवाऊंगा. तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, we compare these two elements, and if आपको पता है of course 5 is greater than 1, so we are going to swap these two elements. हम इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे बच्चों. We are going to swap these two elements because we are arranging this array in the ascending order. Now 1 either, 5 either, 2, 4, 8 as it is. Now we are going to compare these two elements. अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे 5 and 2.
again 5 is greater than 2, तो बच्चों what we are going to do, we are going to swap these two elements now. We are going to swap these two elements now. After this बच्चों, now your array will look like this: 1 2 5 4 8. नाउ पहले मैंने यहाँ पे कंपेयर किया था अपना पहला एलिमेंट, पहला और दूसरा, देन सेकंड एंड थर्ड. तो अब देखिए आप लोग खुद लॉजिक पिक कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर 3 एंड 4. अब मैंने यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया. 5 इज ग्रेटर देन 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू. तो बच्चों वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्वैपिंग. सो 4 अब यहां आ जाएगा हमारे पास, एंड 5 को हम लोग मूव करवा के यहाँ पे मूव कर देंगे. एंड द एल्गोरिथम, द array will look like this now: 4 2 1 2 4 5 8. And now we are going to compare the last two elements, and these two elements बच्चों are 5 and 8. But this time 5 is already lesser than 8, so we are not going to switch the elements, और आपका एरे बच्चों इसी फॉर्म में रहेगा 1 2 4 5 8. एंड यू कैन सी बच्चों, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट साइकिल हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है, नाउ दिस एलिमेंट बच्चों इज इन sorted order now. Now moving forward बच्चों, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अभी तो बहुत सारे सिनेरियोज देखने हमने बच्चों, जो आप लोग क्वेश्चंस कह रहे हैं कि if we have index at 4, same question if we have 1 5 4 1 3. नहीं, अच्छा of course चले वो भी हम खैर कंपेयर कर सकते हैं. अगर इफ यू आर हैविंग द सेम एलिमेंट, सो नो इश्यूज, वो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं होगी. आप अगर 1 को 1 से कंपेयर करेंगे तो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ स्वैपिंग, वहां पे हम लोग स्वैप नहीं करेंगे. ठीक है, वो भी हम लोग, आप लोग जो वैल्यूज बता रहे हैं तो वो वैल्यूज भी हम लोग यहाँ पे ड्राई रन कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल. ठीक है, सो दिस इज द फिनोमेना बच्चों ऑन विच दिस एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क्स. अब हम लोग जरा यहाँ पे इसका कोड देखते हैं. लेट्स राइट डाउन द प्रोग्रामिंग, द सूडो कोड फॉर बबल सॉर्ट. सो सूडो कोड ऑफ बबल सॉर्ट. तो मैंने बच्चों यहाँ पे कोड स्टार्ट करा. I declared few variables. Declare let's say n I j max index temp as integer, and the array that we have बच्चों, this was the array, and the values were defined. मैंने थोड़ी सी रीडिफाइन कर दी वैल्यूज. 5 1 4 2 8. आखिर में जो आप लोग भी क्वेश्चंस, आप लोग भी जो वैल्यूज बताएंगे उसके ऊपर भी हम लोग ड्राई रन करके देख लेंगे. ठीक है, तो मैंने ये एक एरे डिफाइन कर दिया. आई नेम दिस एरे एज नम. व्हाट आई कीप द नेम ऑफ द एरे, आई कीप द नेम ऑफ द एरे एज नम. अब मैंने अपना कोड स्टार्ट करा बच्चों.
नाउ आई व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स डिफाइन कर दिया. कोई बच्चा मुझे बता दे व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दिस एरे नम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दिस एरे नम. ठीक है, वी हैव मल्टीपल आंसर्स, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया हमें यहाँ पे. सो बच्चों द मैक्सिमम इंडेक्स फॉर दिस एरे num is 5. So max index is equal to 5. What I did next, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया बच्चों n, and I initialize the value of n as whatever the max index is minus 1. सर ये -1 क्यों करा आपने? तो बच्चों लेट्स एज्यूम द मैक्सिमम इंडेक्स इज 5. सो हम लोग यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो वी आर गोइंग टू कंपेयर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5. सो हम लोग 4 और 5 कंपेयर करेंगे. अगर मैं n की वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स कर देता, 5 कर देता, तो मुझे 5 को कंपेयर करना पड़ता बच्चों विद 6, और 6 तो मेरे पास था ही नहीं. सो दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा क्या करते हैं, n की वैल्यू को एक कम रखते हैं विद द मैक्सिमम इंडेक्स, बिकॉज वी डोंट नीड टू कंपेयर. हमें आखिरी इंडेक्स को किसी और चीज के साथ कंपेयर नहीं करना. दैट्स व्हाई. नाउ आई पुट अ फॉर लूप ओवर हियर. मैंने एक फॉर लूप यहां पे लगाया बच्चों, एंड दैट फॉर लूप वाज फॉर I is equal to 1 to max index minus 1. Similarly, अब ये बच्चों ये कहां से कहां तक लूप चलेगा? Sir, the value of max index was 5, so this loop is going to run from 1 till 4. Now I define another loop inside this loop, and you people know जब एक loop के अंदर एक और loop आ जाता है, that is called nested loop. So for j is equal to 1 to n. And you people know the value of n, sir. The value of n is again, n की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, that is equal to 4. Now inside the loop, बच्चों inside the loop आप लोग को पता है what we need to do, we just need to compare and swap. हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और आफ्टर कंपेयरिंग हम इन दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप. कंपेयर एंड स्वैप, कंपेयर एंड स्वैप, कंपेयर एंड स्वैप. दैट वी डिड ऑलरेडी, जो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता रहा था एग्जांपल के अंदर. कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप. अगर स्वैपिंग रिक्वायर्ड है तब. If swapping is not required, then you are not going to swap the elements. So how I can compare the two elements? मैंने यहाँ पे कंपेयर किया बच्चों. If the name of the array was, I told you people num, and I need to compare this index. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा if num bracket j, मुझे किस किस को कंपेयर करना है, I need to compare these two elements. So this is the second index. So मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया is equal to num j plus 1. So बच्चों the value of j, जल्दी से बताएं मुझे j की वैल्यू क्या है. Write down on the chat option. सबसे पहले the first value for j will be 1. The first value of j will be 1. So मैंने यहाँ पे देखा num j, पहले इंडेक्स में मेरे पास क्या रखा हुआ है, I am having 5.
एंड j प्लस 1 1 प्लस 1 दैट विल बी 2. तो सेकंड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है मेरे पास, दैट इज 1. आई कंपेयर इन दोनों को बच्चों, मैंने यहां पे कंपेयर किया कि 5 इज ग्रेटर देन 1. तो कंडीशन क्या है? ऑफ कोर्स यू पीपल नो दिस कंडीशन इज ट्रू. सो आई नीड टू स्वैप दीज टू एलिमेंट्स. मुझे इन दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है. अब हाउ वी कैन स्वैप? तो बच्चों टू स्वैप टू एलिमेंट्स द फॉर्मूला इज फिक्स्ड सेम. सर क्या है फॉर्मूला? तो बच्चों द फॉर्मूला इज देन I stored the value of 5 in one of the index for the time being. Temp is equal to num j. So the value of num j will be बच्चों 5. तो temp में हमारे पास क्या स्टोर हो गया? 5 स्टोर हो गया. Now मैंने बताया कि num j पे आप स्टोर कर दें num j प्लस 1. सर ये क्या करा आपने? तो बच्चों द वैल्यू ऑफ j इज 1. मैंने बोला कि पहले इंडेक्स के अंदर दूसरे इंडेक्स वाली वैल्यू कॉपी कर दो. तो बच्चों नाउ योर एरे विल लुक लाइक दिस. सेकंड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है सर? 1. तो मैंने बोला ये पहले इंडेक्स के अंदर भी यही वैल्यू क्या करो, कॉपी कर दो. सो नाउ योर एरे विल लुक लाइक दिस बच्चों. 1 1 4 2 8. 1 1 4 2 8. नाउ अब मैंने बच्चों क्या करा यहां पे? नाउ आई नीड टू मूव, आई नीड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ 5 ओवर हियर. मुझे यहाँ पे 5 स्टोर करना है. सो ये 5 मैंने कहां पे स्टोर किया हुआ है बच्चों? अब आप लोग खुद बता दें. सर आपने टेम के अंदर 5 को स्टोर करके रखा हुआ था. सो नाउ नम j प्लस 1 will be equal to 10. So now your array बच्चों will look like this. Your array will look like this. 1 5 4 2 8. और यहीं पे मैंने एंड इफ करा और यहीं पे बच्चों मैंने क्या करा, नेक्स्ट j कर दिया. Now this j is going to move forward. अब ये j बच्चों मुझे लेके जाएगा वापसी टूवर्ड्स over here and now the value of j will become 2. अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. अब आप लोग मुझे बताएं j की वैल्यू तो 2 हो गई है. What is stored at the second index? सेकंड इंडेक्स पे क्या स्टोर है हमारे पास? सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक बताया मुझे. आई वांट यू पीपल टू आंसर. सेकंड इंडेक्स में अब क्या स्टोर है हमारे पास? परफेक्ट, थैंक यू बच्चों. बहुत सारे बच्चों ने बता दिया हमें कि सर एट सेकंड इंडेक्स द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इज 5. तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया second and j plus 1 that will be the third index. Now I am comparing these two indexes. So I compared 5 is greater than third index पे क्या रखा हुआ है भाई? 4. So 5 is greater than 4. Again condition is true and again I am going to swap these two elements. मैं इन दोनों को again क्या करूंगा? Swap कर दूंगा. So after swapping आपने देख लिया किस तरह स्वैप हो रहे हैं. सो आफ्टर स्वैपिंग माय एरे बच्चों विल लुक लाइक दिस. 1 4 5 2 8. नाउ द वैल्यू ऑफ j बच्चों विल बिकम 3 एंड थर्ड इंडेक्स में मेरे पास क्या स्टोर्ड है? नाउ थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करना है हम लोगों ने. फर्स्ट वी कंपेयर्ड 1 and 2. Then we compared
Then we compared 2 and 3, and now we need to compare 3 and 4. So after comparing बच्चों 3 and 4, again swapping will be done, and now your array बच्चों will look like this: 1 2 1 4 2 5 8. And at last सबसे आखिर में I am going to compare बच्चों 4 and 5. ये आपका लूप चल रहा है. Your loop is going to run from 1 till 4. So आखिरी एलिमेंट बच्चों मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, एंड अगेन यहां पे देयर इजंट एनी स्वैपिंग रिक्वायर्ड. सर क्यों नहीं स्वैपिंग रिक्वायर्ड? बिकॉज अगर जे की वैल्यू बच्चों 4 है तो 4 इंडेक्स पे हमारे पास है 5. तो मैंने यहां पे कंपेयर किया 5. यू कैन सी फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 5 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है हमारे पास j plus 1 दैट इज 5. तो फिफ्थ इंडेक्स में क्या है 8. So 5 is greater than 8. कंडीशन क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे? the condition becomes false. तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया? and if and no swapping is being done. अब मेरा बच्चों जो इनर लूप था वो सिर्फ एक दफा अभी कंप्लीट हुआ है. सो मैंने यहाँ पे आप लोग को वर्डिंग की फॉर्म में लिखवा दिया. लेट्स नोट दिस स्टफ. ये स्टफ इंपॉर्टेंट है आप लोग के पास. आफ्टर कंप्लीटिंग the first inner loop, the last element is being sorted and put at its assigned location. तो अपनी सही जगह पे बच्चों जो आपका आखिरी एलिमेंट था वो आ गया. अब जब ये आखिरी जगह पर आ गया तो अब जब मैं अगली दफा कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा, आई डोंट नीड टू कंपेयर दिस. मुझे ये वाला एलिमेंट बच्चों कंपेयर अब नहीं करना. आई डोंट नीड टू कंपेयर दिस एलिमेंट. अब मुझे जो अपना कंपेयर करना है, आई जस्ट नीड टू कंपेयर टिल हियर. मुझे सिर्फ यहां तक कंपेयर करना है बच्चों. आई डोंट नीड टू कंपेयर दिस 5 नाउ, बिकॉज नाउ दिस 5 फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर आपका जो 8 है, दिस इज नाउ एट इट्स करेक्ट लोकेशन. So what I did over here, बच्चों, I reduced the value of n by 1. So n is equal to n minus 1. सर ये क्या करा? तो बच्चों अब मेरा लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक. तो I am just going to compare 3 तक. 3 तक कंपेयर करने का मतलब है 1 and 2 को कंपेयर करूंगा, 2 and 3 को कंपेयर करूंगा, and 3 and 4 को कंपेयर करूंगा. I'm not going to compare the fifth element. So that's why मैंने यहाँ पे क्या किया, एक reduce कर दिया, n is equal to n minus 1. और मैंने अपना लूप भी यहाँ पे एंड कर दिया, second one, that is next I. अब ये next टाइम बच्चों मुझे ऊपर लेके गया वापसी. Now the value of I will become 2 and the value of j again become 1. अब वापसी j की वैल्यू 1 हुई. I again compare now on the first index we have 1 and 4. अब हमने वापसी बच्चों कंपेयर अपने स्टार्ट करा. This time I compared 1 and 4. So no swapping required. It will be retaining the same values 1 4 2 5 8. अब ये नीचे आएगा बच्चों यहाँ पे and if next j, ये मुझे ऊपर लेके जाएगा. Now the value of j will become 2. j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2. और ये 1 2 अब कहां तक चलेगा बच्चों? 1 2 4 नहीं चलेगा. हमने n की वैल्यू एक रिड्यूस कर दी थी. सो नाउ दिस लूप इज गोइंग टू रन 1 2 3.
अब जे की वैल्यू बच्चों क्या होगी 2, जे की वैल्यू क्या होगी 2। सो सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है हमारे पास 4 and 3। So you can see 4 is greater than 2, so swapping will be done। और आपके पास स्वैपिंग के बाद your array will look like this। 1 2 4 5 8। अब ये स्वैपिंग हो गई बच्चों हमारे पास। नाउ आपके पास ये एरे थर्ड टाइम चला, ये एरे आपका बच्चों थर्ड टाइम चला। एंड नाउ वी कंपेयर्ड 4 and 5। एंड 4 and 5 के अंदर देयर वोंट बी एनी स्वैपिंग रिक्वायर्ड बिकॉज 4 इज लेसर देन 5। सो कोई स्वैपिंग आपके पास रिक्वायर्ड नहीं होगी और आपका लूप कंप्लीट हो गया। और अब मैंने क्या किया, आई रिड्यूस अगेन द वैल्यू ऑफ एन। अब एन की वैल्यू बच्चों मैंने क्या कर दी 2। अब मैंने एन की वैल्यू क्या कर दी 2 बिकॉज दिस टाइम नाउ आपका लास्ट एलिमेंट आई टोल्ड यू पीपल करेक्ट ऑर्डर के अंदर आ जाता है। तो नाउ दीज टू एलिमेंट्स आर इन करेक्ट ऑर्डर। अब ये दोनों एलिमेंट्स आपके करेक्ट ऑर्डर के अंदर आ चुके हैं। वी डोंट नीड टू कंपेयर दीज टू एलिमेंट्स। अब बच्चों मैंने यहाँ पे वापसी नेक्स्ट आई ऊपर गया। नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बिकम 3। आई की वैल्यू अब मेरे पास बच्चों हो जाएगी 3। थर्ड टाइम लूप चला और ये लूप चलेगा बच्चों मेरे पास 1 2 2। अब 1 2 2 चलेगा बच्चों। अगर मैं आप लोग को एरे दिखाऊं, सो योर एरे इज ऑलरेडी नाउ इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये ऑलरेडी बच्चों सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ चुका है। अब ये क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर नाउ, वी आर फर्स्ट गोइंग टू कंपेयर नाउ 1 and 2। नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, 1 2 ऐसे ही रहेंगे, 4 5 8। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कंपेयर 2 and 4 एंड बच्चों अगेन नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड और आपके एलिमेंट्स यही रहेंगे 1 2 4 5 8। एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर 4 and बच्चों, अच्छा n की वैल्यू 2 थी तो बस यहीं तक कंपेयर होना है भाई, आगे कंपेयर नहीं करना हम लोगों ने। हमें यहीं तक कंपेयर करना है, हमें आगे कंपेयर नहीं करना। अब बच्चों नाउ द वैल्यू ऑफ n विल बी रिड्यूस टू 1। और फिर आखिर में बच्चों आप लोग आखिरी लूप के अंदर यू आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर 1 and 2। अब यहां पे बच्चों बताने का मकसद क्या है, आपका एरे जो है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर बहुत पहले आ गया था। कब आ गया था, आपका एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर यहां पर आ गया था। बट स्टिल यू नीड टू रन द लूप, अभी भी और आगे आप लोग को लूप चलाना था। सो दिस sorting algorithm of bubble sort is considered to be inefficient। सर inefficient क्यों, इतनी मेहनत से हमने ये algorithm अभी देखा पड़ा। why this algorithm is inefficient? because बच्चों आपका array sorted order के अंदर आ गया था but still you need to run the algorithm, still your loop was running, so that's why it was an inefficient algorithm। हमें ऐसा algorithm develop करना होता है यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि जब हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ जाए, अगर हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ जाए तो इट शुड डायरेक्टली एंड राइट ओवर देयर। वो वहीं पे क्या हो जाना चाहिए, हमारा एरे एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अभी देखिए हम लोगों ने जो लूप्स अप्लाई करें, बोथ द लूप्स आर अनकंडीशनल लूप, बोथ द लूप्स आर अनकंडीशनल लूप। एज्यूमिंग दैट मैं अगर इस एरे के अंदर, इस कोड के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर ऑलरेडी सॉर्टेड एल्गोरिथम अगर मैं अप्लाई करता जो ऑलरेडी सॉर्टेड होता, तो वो एरे स्टिल उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स चलता, 8 9 टाइम्स जितने दफा उसको चलना होता वो चलता। लेकिन नाउ आई नीड टू डेवलप एल्गोरिथम, अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है तो वो सिर्फ एक दफा चले मेरा लूप, और वो लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। सो हाउ आई कैन डू दैट, ये कैसे कर सकता हूं बच्चों, लेट्स राइट डाउन द एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर दिस बबल सॉर्ट। नहीं बेटा पेपर्स अभी चेक नहीं हुए, मैंने तो अभी कलेक्ट भी नहीं करे। आई विल बी कलेक्टिंग टुमारो, कल कलेक्ट करूंगा एंड देन सैटरडे तक आप लोग के पेपर्स चेक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिकॉज द वॉल्यूम इज टू मच, मेरे पास यहाँ पे अराउंड 88 90 कॉपीज है तकरीबन दैट आई नीड टू चेक, सो इट विल टेक टाइम। सो बच्चों लेट्स राइट डाउन द एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट नाउ। कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं।
So let's write down an efficient algorithm for this bubble sort. Now moving forward, let's see this code. What I did in this algorithm, nothing, same चीजें रहेंगी हमारे पास almost. I'm not declaring the variables over here. Directly मैं use कर रहा हूं बस. I define the max index. That will be 5. Now this time we are assuming that the array looks like this बच्चों. हमारा array कुछ इस तरह दिखता है अब. One, 8, 19, 22, 24. The name of the array is num and the array is already in sorted order. अब क्या होगा हमारे साथ हमें देखना है जरा. तो मैंने स्टार्ट करा बच्चों, सेम प्रोसेस. n is equal to max index -1. अब मैंने यहाँ पे जो आउटर लूप है ना, I converted that outer loop into repeat until loop, and I declared one more variable, no swap, and I initialized the value of no swap with true. What I did, मैंने यहाँ पे no swap की वैल्यू बच्चों क्या करवा दी, ट्रू करवा दी. Why I did this, ये काम मैंने क्यों करा, बिकॉज देखो अगर स्वैपिंग नहीं होगी, मैं आप लोगों को कोड दिखाता हूं जरा. अगर मेरे पास मेरे एरे के अंदर स्वैपिंग नहीं हो रही है, अगर मेरे पास मेरे एरे के अंदर स्वैपिंग नहीं हो रही है, दिस मींस दैट माय एरे इज इन सॉर्टेड ऑर्डर बच्चों. आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स. इफ देयर इज नो स्वैपिंग इन द एरे, दिस मींस माय एरे इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर. एंड यू पीपल, अगेन आप लोग को एक और बात भी पता है, अगर मेरे पास स्वैपिंग होगी तो दिस इज द पीस ऑफ कोड, दिस इज द पीस ऑफ कोड दैट आई एम गोइंग टू परफॉर्म. तो ये पीस ऑफ कोड क्या करता है, मेरे पास स्वैपिंग करता है. यही कोड मेरे पास क्या करता है बच्चों, स्वैपिंग करता है. सो अगर मेरे पास स्वैपिंग नहीं हो रही, दिस मींस ये कोड मेरा कोड रन नहीं होगा. ठीक है. सो व्हाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, मैंने अब अपना अगला एफिशिएंट एल्गोरिथम बनाया. मैंने यहाँ पे आउटर लूप रिपीट अंटिल कर दिया, मैंने नो स्वैप की वैल्यू ट्रू करवा दी. एंड व्हाट आई डिड नेक्स्ट, सेम फॉर j is equal to 1 to n. एंड नाउ मैंने अपना कंपेयर स्टार्ट करवाया. इफ num j is greater than num j plus 1, then you people know the formula for swapping is same. Then temp is equal to num j plus 1, num j is equal to num j plus 1, and num j plus 1 is equal to temp. ठीक है. और बच्चों अगर स्वैपिंग होगी, इफ स्वैपिंग इज गोइंग टू अकर, मैं नो स्वैप की वैल्यू क्या करवा दूंगा, फिर स्वैपिंग तो हो गई तो मैं नो स्वैप की वैल्यू सेट करवा दूंगा. नो स्वैप शुड बी इक्वल टू फॉल्स, बिकॉज यहां पे क्या हुई, स्वैपिंग हो गई. और यहीं पे मैंने एंड इफ करवा दिया, और यहीं पे मैंने नेक्स्ट जे करवा दिया. अभी मैं आप लोगों को ड्राई रन करके दिखाऊंगा.
अभी मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा। अब ये लूप आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सिमिलरली मैंने सेम यहाँ पे n की वैल्यू को एक रिड्यूस डाउन भी कर दिया, n इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे मैंने अब लगा दिया बच्चों अनटिल। ये लूप कब तक चलता रहे? जब तक नो स्वैप की वैल्यू मेरे पास ट्रू के अलावा कोई और वैल्यू। सो अगर स्वैपिंग होगी बच्चों, द वैल्यू ऑफ नो स्वैप विल बी अपडेटेड टू फॉल्स, और अगर स्वैपिंग नहीं होगी तो नो स्वैप की वैल्यू क्या रहेगी? द वैल्यू फॉर नो स्वैप विल बी केप्ट एज ट्रू। हम अब अपना एरे देखते हैं जरा, हम अपना क्या करते हैं, एरे देखते हैं। Okay, so the values were 1, 8, 19, 22, 24. The first thing I did, बच्चों, I compared 1, 8. The value of n बच्चों यहाँ पे is 4. So 1 से लेके 4 तक चलेगा लूप. I compared 1 and 2. Fine, no swapping required. Then I compared 8 and 19. No swapping required. Then I compared 19 and 22. No swapping required. And at last, I compared 22 and 24, and again no swapping required. तो जब स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, मेरा ये कोड बच्चों एग्जीक्यूट नहीं होगा। नो स्वैप की वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू। और मैं यहाँ पे जब आके चेक करूंगा ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो मेरा लूप यहाँ पे क्या होगा? यहीं पे एंड हो जाएगा। तो बच्चों दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, कि अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है या सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ चुका है, इफ माई एरे इज इन नाउ सॉर्टेड ऑर्डर, तो ये एक्स्ट्रा ज्यादा रन नहीं होगा। ये एल्गोरिथम, ये लूप मेरे पास ज्यादा रन नहीं होगा। वंस माई एरे इज इन सॉर्टेड ऑर्डर, दिस लूप इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये एंड कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ द बबल सॉर्ट। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों काम की। सर क्या है काम की बात? तो बच्चों काम की बात ये, दैट यू नीड टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज एल्गोरिथम। ये दोनों एल्गोरिथम आप लोग को याद होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए। बिकॉज देखो ये पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपका एग्जामिनर स्ट्रेट अवे आपको बोलता है राइट डाउन द एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट, सो यू शुड नो राइट डाउन द एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट, दिस इज द एफिशिएंट एल्गोरिथम। तो आपको दोनों एल्गोरिथम्स बच्चों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि व्हाट वी डू, we just compare and swap, and you should just know this formula for swapping the elements. आपको स्वैपिंग ऑफ द एलिमेंट्स आना चाहिए। अब एक और बात बच्चों, सर और क्या बात है, अब वो भी बताएं हमें जरा। द नेक्स्ट थिंग इज, और क्या बात बतानी थी आप लोगों को? वी कैन नॉट से इनएफिशिएंट, वी कैन से कि ये पहला कोड था हमारा, दिस वाज अ जर्नलाइज्ड कोड, एक जर्नलाइज्ड कोड था हमारे पास, ठीक है। एंड दिस इज द एफिशिएंट कोड फॉर द बबल सॉर्ट। तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट एल्गोरिथम हमारे पास, एंड दैट वाज अ नॉर्मल कोड फॉर द बबल सॉर्ट। कुछ बात बतानी थी मुझे, इट्स नॉट क्लिकिंग इन माय माइंड। मैंने भी सोचा था ये वाली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बतानी है आपको। आई थिंक वो प्रीवियस सेक्शन को बताई होगी, शायद याद आ जाए मुझे। नहीं पता नहीं, चले खैर
द कंक्लूजन बच्चों इज दैट यू नीड टू रिमेंबर दीज सूडो कोड्स। ये सूडो कोड्स आप लोग को याद होने चाहिए। आप लोग को पूरे, इफ यू वांट टू मेमोराइज, आप लोग मेमोराइज करके रखें इस कोड को, बिकॉज एग्जामिनर डायरेक्टली पेपर के अंदर क्वेश्चन हिट करता है दैट यू नीड टू परफॉर्म दीज एल्गोरिथम्स। तो ये सूडो कोड्स, सिंपल एल्गोरिथम बबल सॉर्ट का एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम, ये दोनों कोड्स आप लोग को याद होने चाहिए। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज के सर, हाँ याद आ गया मुझे क्या बताना था, दोनों चीजें याद आ गई। चलो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों का क्वेश्चन एंटरटेन कर देता हूं। दैट क्वेश्चन इज कि अगर स्ट्रिंग आ जाए तो बच्चों व्हेन वी आर कंपेयरिंग स्ट्रिंग, सो रिमेंबर ए हैज द लोएस्ट वैल्यू, लाइक ये कंसीडर किया जाएगा एज 0, और z has the highest value, z having the highest value. So अगर मेरे पास दो नाम है, लेट्स से एक नाम था मेरे पास अली और एक नाम था मेरे पास लेट्स से जैनब। सो अली is considered as the lower letter, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अली पहले आएंगे और जैनब बाद में आएंगी। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो जैनब पहले आएंगी और अली बाद में आएंगे। ठीक है, नाउ अब मुझे बताएं बच्चों, दिस इज योर कोड। कोई सा भी एल्गोरिथम ओपन कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये कोड मैंने आप लोग को लिखवाया है फॉर असेंडिंग ऑर्डर। ये कोड मैंने आप लोग को क्यों लिखवाया है? फॉर द असेंडिंग ऑर्डर स्टफ। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कोड इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, सिर्फ एक सिंबल चेंज होगा। और आई थिंक पूरी क्लास आप लोग के पास इतना ब्रेन है, यू कैन टेल मी कि कौन सा सिंबल यूज करेंगे, चेंज करेंगे फॉर कन्वर्टिंग दिस एल्गोरिथम इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। इस एल्गोरिथम को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सिर्फ एक सिंबल चेंज करना है एंड दिस एल्गोरिथम विल बी कन्वर्टेड इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। वी हैव वन राइट आंसर, थैंक यू। अनदर राइट आंसर, 2 3 3 स्टूडेंट्स ओनली। आई वांट पूरी क्लास बता दे भाई, बड़ा इजी सा टास्क है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो व्हाट शुड बी द चेंज? ठीक है, 3 मोर आंसर्स। अभी भी सिर्फ अराउंड 12 13 बच्चों ने जवाब दिया है। ये तो पूरी क्लास को जवाब दे देना चाहिए था। तो बच्चों, यस यू पीपल आर राइट, वी आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस सिंबल। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है, सो जस्ट चेंजिंग दिस सिंबल फ्रॉम ग्रेटर देन टू लेस देन, सो नाउ योर एरे विल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके मैं आप लोगों को बबल सॉर्ट के कुछ पास में क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। यस, वी हैव अनदर क्वेश्चन बच्चों। एक और बच्चे ने सवाल किया, अच्छा सवाल है। ही इज सेइंग कि सर इफ वी आर हैविंग टू लेटर्स लाइक अली एंड अहद, तो बच्चों इफ द फर्स्ट लेटर्स आर सेम, अगर आपके पहले लेटर सेम होते हैं, अगर आपके पहले लेटर सेम होते हैं, देन वी कंपेयर द नेक्स्ट 2 लेटर्स। सर हम नेक्स्ट लेटर्स के ऊपर कंपैरिजन अपना मूव करवा देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। Okay, I will upload the PDF of the last week's lectures that we revised for paper 2. I think lectures तो मैंने upload कर दिए थे. I haven't uploaded the PDF, so I will try to upload the PDF as well. ठीक है, तो आज को यहीं तक होल्ड करते हैं बच्चों। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर कोड कैसा होगा? 10 नहीं, सेम कोड होगा, whatever the name, let's say the name of the array is name, तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे, बस सिर्फ नम की जगह क्या आ जाएगा, नम की जगह क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। दैट्स इट, सेम कोड होगा, सिर्फ यू जस्ट नीड टू चेंज द नेम ऑफ द एरे, दैट्स इट। यस, A to Z, 0 to 9 and capital A to Z, this is what we need to do. We don't need that else one. पेपर कौन से ईयर से दिया था मुझे याद नहीं, बेटा आई पिक द रैंडम क्वेश्चंस।
नहीं सर, अगर इंडेक्स में हो ये, सर लाइक एलिमेंट हो ये। अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट। सो अगर आपका एलिमेंट है तो जस्ट लाइक यू वांट टू से कि अगर वेरिएबल हो तो वेरिएबल आप यहां पे कर सकते हैं नेम, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं आप, हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वेरिएबल करना चाहें तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह भी कंपेयर कर सकते हो सूडो कोड्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।